ठीक, नमस्कार सबको। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। इससे काफी लोग जुड़ रहे हैं और अब हम शुरुआत करते हैं सर। किरण। Good day everyone. On behalf of IQAC, Government College of Arts, Science and Commerce, Khandola, Marcella, Goa, I, Ms. Kiran Palkar, welcome you all to the second day of Bharatiya Gyan Mahotsav, Revisiting Indian Knowledge System, a national level 6-day convention on Indian knowledge system. The Indian knowledge system is a rich tapestry of traditional wisdom, philosophies, and practices that have evolved over thousands of years. It encompasses diverse fields such as Ayurveda, Yoga, Vedanta, astronomy, mathematics, literature, and more. The National Education Policy of India aims to integrate and promote the Indian knowledge system in the modern educational framework. By integrating traditional wisdom with modern educational principles, India aims to create a balanced and culturally rooted education system that prepares students for the challenges in the 21st century. The Indian knowledge system is not a relic of the past, but a living tradition that continues to inspire and guide. With this thought, through this convention, we are gathered here to share and acknowledge this rich knowledge that we have inherited. This FDP will surely give us a new perspective. Yesterday, we started this FDP with an inaugural address by our esteemed chief guest, Professor Savio Falero, Managing Director, Goa State Research Foundation. In the first session yesterday, our speaker, respected Professor Sanjay Kumar Dubeji, has elaboratively enlightened us on the topic Indian knowledge system, essentiality of Indian knowledge tradition in NEP. And today, for the second session, we have amongst us Professor Vasishtha Narayan Tripathi, retired Professor, Kashi Hindu Vishwavidyalay. Sir, आपका स्वागत है. I welcome you, sir. Sir will briefly elaborate us on the topic Indian knowledge system in the view of theatre. I welcome you, sir. I now request our principal, Professor Purnakala Saman, to kindly give welcome address to the gathering. Thank you, Kiran. It's really a great pleasure for me to welcome retired Professor Vasishtha Narayan Tripathi from Kashi Vishwa Vidyalay, BHU. Rather, it is BHU, but it has been molded as a Kashi Vishwa Vidyalay. That is very beauty of that, putting it across. And sir will be talking on the topic Indian knowledge system in view of theatre. So I think each and every individual will be having some connection in their life, to the theater and drama that way. And life itself is a drama, in fact. And we have achieved it. It is in our blood from ancient time. And if you look with modern technology and drama or theater in ancient time, there is really a vast, differences. Basically, in Vedic time, the theater will be utilized for conveying the messages to the village people. Okay, wherever you want to give the messages, theater would have been in any village, not specific to the Inox is right nowadays, or some big theaters nowadays available. Besides that, the earlier time, I feel that the artists were multi-talented. They were singers as well as they were male. They were used to do female character, male character. It was poemic or poetic form of telling the messages using more of time of bhajans or poems or a means of ways of expressing themselves in a form of a more of poetic nature. But nowadays we have got songs. It is coming in picture, different places we show. So if you look in that matter, the changes and differences that has overcome over the years, maybe 100 years and more, it has really changed a lot. But the concept of the giving happiness that time and now, I think that part is remaining same. The messages, if it is for giving for peaceful nature or happiness, the ancient time theaters as well as the recent time theaters conveys the same message to the youth, to the young people, to the elderly people, and to the senior citizens. So that is going to be a basic heart where this our FDP is going to take.
And I'm really happy that IQAC Government College Khandola is taking such an innovative type of topic in front of all my audience and participants, and especially my faculties from Goa and across the state who are are attending this. This is really going to nurture them in their real teaching, because unless until we are we are an artist, we cannot be a better teacher in front of the student. That's what I feel. Okay, and Professor Tripathi may also agree with it, that we are playing actually every day a role in front of in front of our students. And so sir, your today's eminent talk, great learners talk, will be a really nice deliberation for all my faculty members attending this, and it should be a valuable thing for them in NEP especially, because we are in a world of online, we are in a world of Google Meet, and then we have to express ourselves from 45 minutes lecture to a 30 minutes Google Meet, condensing our 1.5 hour lectures to 30 minutes. It's really a teacher has to play which point to be focused and which point to be deleted, and how much a student should understand. And theater also gives the same message towards the understanding in the 3 hours of movies. Nowadays 15 minutes movies are also there, 5 minutes reels are also there. So people, so the change in the system from hours to a very small time limits, because our focusing time limit, I mean to say, our understanding time limit has decreased. We can be very concentrated only for 3 to 5 minutes in this world. Earlier we were the readers, and we could listen, and we can keep the the thoughts in our memories for 3 hours or something. But now in such a strategic life that we are, and stress that we are living, I think we have a understanding as well as listening capacity has reduced a lot. And the theater, I think, should play a great role in our own lives as a teacher. And your deliberations, especially with respect to Indian knowledge system in view of theater, will really going to boost and benefit our all the participants attending this theater. Sir, I welcome you all for this, and wish you a very good deliberation for all my participants across. Thank you. Thank you, Miss. I now request Vice Principal Dr. Asha Gehlot to kindly give a welcome address to the gathering. आज तो हमें मैं नहीं बोलूंगी सर, आप बोलेंगे, हम सुनेंगे। तो आज आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी हमारे साथ हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वो रिटायर्ड हैं, और रंगमंच जो आज उन्हें विषय दिया गया है वो उनके दिल के करीब है। और इसीलिए मैं तो कहूँगी कि आज के लिए एक बहुत ही सर्वोचित और सारस्वत व्यक्ति हमारे साथ हैं, और हम सब मिलकर प्रतिभागियों की ओर से और गवर्नमेंट कॉलेज खांडोला की ओर से सर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत ही कम समय में सूचना मैंने आपको पिछले हफ्ते में ही दी और तुरंत आपने हाँ कहा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। जो 6 दिवसीय रिविजिटिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम या ज्ञान का महोत्सव का जो आयोजन खांडोला महाविद्यालय ने किया है, आपके आने से सर उसे गरिमा प्राप्त हो गई है। और मैं इसके अलावा और अधिक नहीं बोलना चाहती हूँ। पुनः एक बार सभी प्रतिभागियों की ओर से और खांडोला महाविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। ये आज का जो सत्र है, छोटा सा परिचय दें। आप आ रही ना, छोटा सा परिचय देंगे दीपाली जी। I now request Miss Deepali Sutar to kindly introduce our speaker for today's session, Professor Vasishtha Narayan Tripathi ji. नमस्कार। आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग से MA और PhD की उपाधि हासिल की। आप 1984 से अध्यापन का कार्य कर रहे थे। 2020 से आप सेवानिवृत्त होने के बावजूद शोध के क्षेत्र में उच्च स्तरीय कार्य करते आ रहे हैं। भारतीय काव्य शास्त्र, नाटक एवं रंगमंच जैसे विषयों के आप विशेषज्ञ हैं।
रस और रस परंपरा, नाटक के रंगमंचीय प्रतिमान तथा भारतीय लोक नाट्य, ये 3 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लगभग 33 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। 2015, 2016 और 2017 में आप अंतर संकाय युवा महोत्सव स्पंदन के संयोजक रह चुके हैं। 2017 से 2020 तक आप एक भारत श्रेष्ठ भारत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नोडल ऑफिसर रह चुके हैं। 2019 और 2020 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इतिहास खंड 1 और खंड 2 पुस्तक के आप संपादक मंडल के सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही 2021 से 2023 तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य भी रह चुके हैं। सर, खंडोला महाविद्यालय की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में प्रतिभागी सदस्यों के अतिरिक्त कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर पूर्ण कला जी, बहुत अच्छा नाम है पूर्ण कला, और 16 कलाएं होती हैं तो पूर्णता जो है 16 कलाओं के साथ होती है। तो पूर्ण कला सामंता जी और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आशा गहलोत जी, IQAC की डायरेक्टर हैं डिलेक्टा डिकोस्टा जी, और उपस्थित सभी प्रतिभागीगण। शिक्षा के 2 तरीके हैं, जिसको कहा जाता है कि एक औपचारिक शिक्षा और एक अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पूरा विश्व जो है वो विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, घर से लेकर के पूरे विश्व तक। औपचारिक शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं बनाई गई हैं जो प्राथमिक से लेकर के उच्चतर तक की शिक्षा हमें देते हैं। प्राचीन समय में भी गुरुकुल हुआ करते थे, आचार्यों के पास बैठ करके सीखने की परंपरा रही है। ये परंपरा आज भी किसी न किसी रूप में कायम है। जब हम देखते हैं संगीत की शिक्षा जो विश्वविद्यालयों में दी जाती है, महाविद्यालयों में दी जाती है, कॉलेजेस में दी जाती है, उनसे भिन्न गुरु हैं संगीतों के, संगीत के विभिन्न वाद्य के, गायन के, और वो गुरु संगीत की शिक्षा देते हैं और उनका घराना माना जाता है। वो भी एक तरीके से अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बीच का तरीका है, क्योंकि जब गुरु के यहाँ आप चले जाते हैं तो वो औपचारिक शिक्षा हो जाती है, लेकिन वो अनौपचारिक दृष्टि से दी जा रही है। कोई फाइनेंशियल वित्तीय मदद किसी संस्था की या किसी सरकार की नहीं होती। और अनौपचारिक शिक्षा घर के बड़े बूढ़े से लेकर के बच्चे तक आपको शिक्षित कर सकते हैं किसी न किसी बात पर, और आपका ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानवर्धन होता है। आप चल रहे हैं, पशु पक्षी भी आपको शिक्षित करते हैं, पेड़ भी आपको शिक्षित करते हैं। कहा जाता है ना कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो जब ये कहा जाता है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, पिबन्ति स्वयमेव नाभ्य, वाराधरो वर्षति नात्म हेतु, परोपकाराय सताम विभूत। ये संस्कृत में है, और वो इसके पहले जो हमने कहा वो हमारी लोक भाषा हिंदी में। तो अब जब कहा जाता है वृक्ष कबहु नहीं फल बखें, नदी न संचय नीर, तो हम परोपकार करने की जो शिक्षा हमको दी जा रही है वो किसी विद्यालय नहीं, कोई विद्यालय नहीं दे रहा है, प्रकृति दे रही है, वृक्ष दे रहे हैं, नदियां दे रही हैं,
तो ये इसी तरीके से पशु पक्षी भी हमको शिक्षा देते हैं कि क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं। पंचतंत्र की कहानी देखिए, आप उसमें जाइए तो आपको मिलेगा ना कि बहेलिया जो है वो कबूतरों को पकड़ना चाहता था और सारे कबूतर उसके जाल में फंस गए। फंसने के बाद तब उन लोगों ने अब बता दिया था कि जाओ, फंसोगे, बच के रहना, लेकिन फिर भी फंस गए। तब ये तय किया गया उन्हीं में से कि हम एक साथ अगर मिलकर के उड़ेंगे तो हम पूरा जाल लेकर के उड़ जाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पक्षी हैं और पक्षी हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम सामूहिक शक्ति के साथ रहेंगे, संघे शक्ति कलौ युगे, अगर हम एक साथ कोई काम करेंगे तो हमको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो हमारी जो ज्ञान परंपरा है भारत की, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो हमारी परंपरा है, सिस्टम क्या, प्रणाली, उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान प्रणाली, वो ज्ञान प्रणाली जो हमें परंपरा से प्राप्त हुई है, उसको छोड़ करके जो हम नई शिक्षा पद्धति की ओर गए और लगभग स्वतंत्रता के बाद भी 70-75 साल तक हम उस शिक्षा के साथ चलते रहे, तो वर्तमान शासन प्रणाली ने यह अनुभव किया कि हमको नई शिक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए। इसीलिए उसका नाम नई शिक्षा नीति है, NEP। एन का हम अर्थ नेशनल भी ले सकते हैं, लेकिन ये शिक्षा नीति नई है। ये केवल नेशनल के लिए नहीं है, यह विश्व के लिए है। ये भारत की जो नई शिक्षा नीति है वो इस शिक्षा नीति के द्वारा पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि अब आज से आगे से जो शिक्षा की प्रणाली होगी वो ये होनी चाहिए, और अगर इस पर काम करेंगे तो पूरा विश्व समुन्नत होगा। तो हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, यही बड़ी बात है। भारतवर्ष जो है केवल अपने बारे में नहीं सोचता है, वो हमेशा विश्व के बारे में सोचता है। खैर, हम आते हैं अपने विषय पर। विषय हमारा जो है वो ये है कि माध्यम हमारा क्या होगा, थिएटर। तो पहले हम थिएटर को जान लें। हम सब लोग थिएटर को जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, और पूरे देश में चाहे जिस भी भाषा के हम बोलने वाले हों, चाहे जिस भी भाषा में हम काम करने वाले हों, रंगमंच हर जगह है। और विशेष रूप से माना जाता है कि पूरे देश में जो बंगाल का है और महाराष्ट्र का रंगमंच, ये सबसे विकसित रंगमंच है, सर्वोत्कृष्ट रंगमंच है। लेकिन रंगमंच पूरे देश का चाहे जिस भी भाषा का हो, वो अनुप्राणित तो हुआ है संस्कृत रंगमंच से। जो हमारा रंगमंच है वो संस्कृत रंगमंच है, और उसी रंगमंच से हम निकले। और संस्कृत रंगमंच ने नाट्यशास्त्र को जन्म दिया कि नाट्यशास्त्र ने संस्कृत रंगमंच को जन्म दिया, ये एक उलझा हुआ प्रश्न है। और ये उसी तरीके का प्रश्न है जिस तरीके से हम कभी कभी प्रश्न करते हैं कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ। तो ये दोनों हम ये मान के चलते हैं कि लोक में जो कुछ है, लोक के लिए संस्कारबद्ध होने के लिए शास्त्रों का निर्माण किया जाता है। लेकिन शास्त्रों का निर्माण होने के साथ उनके अनुकरण और उस पर आचरण करने का काम लोक का होता है। तो दोनों का एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। हम जब शास्त्र की चर्चा करते हैं तो उसी के साथ साथ लोक की चर्चा होती है। जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं, प्राय साहित्य की जब बात करते हैं, तो छोटी कक्षाओं से लेकर के और बड़ी कक्षाओं तक हम काव्यशास्त्र या साहित्य शास्त्र पढ़ाते हैं। छोटी कक्षाओं में रस गंध अंगार पढ़ा जाता है। तो जब रस पढ़ाते हैं तो उसमें
भाव, स्थायी भाव और रसों की चर्चा की जाती है। 9 स्थायी भाव हैं, 9 रस हैं। नाट्य शास्त्र में जो चर्चा की गई है वो 8 स्थायी भावों की और 8 रसों की चर्चा की है। आगे चला 9, फिर आगे 10 भी हुआ, 11 भी हुआ, 12 भी हुआ, ये अवान्तर बात है, उसको बात की। उसके लिए एक सूत्र हमें मिलता है कि तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कहाँ किससे संयोग होता है? तो स्थायी से होता है। ये जब बात आती है तो ये होता है कि भाई ये रस क्या है, कैसे है, ये सूत्र कहाँ आया। और जब ये सूत्र की हम तलाश करते हैं तो ये सूत्र हमको मिलता है नाट्य शास्त्र में जाकर के। नाट्य शास्त्र में रस का सूत्र मिलता है और रस के बारे में बात की जाती है 6ठे अध्याय में, और 7वें अध्याय में भावों की बात की जाती है। तो ये जो रस है, ये रस हमको कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में। और कवि विश्वनाथ हुए हैं। तो अब ये नाट्य क्या है? नाट्य शास्त्र किसका है? नाटक का शास्त्र है। लेकिन नाट्य शास्त्र केवल नाटक का शास्त्र नहीं है, वो संगीत का भी शास्त्र है, वो नृत्य का भी शास्त्र है। तो एक बड़ा शास्त्र है जो 36 अध्यायों में है। कहीं कहीं 37 अध्याय में मिलते हैं, लेकिन 36 अध्यायों में है। तो ये 36-37 अध्यायों में निबद्ध जो नाट्य शास्त्र है, उसके 6ठे अध्याय में हमको रस की चर्चा मिलती है। तो अब ये नाट्य शास्त्र क्या है और जहां हमको मिलता है, तो नाट्य दर्शन से संबंधित सारे सूत्र हमको इस नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिसमें नृत्य भी है, संगीत भी है और नाट्य भी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारा कि हमको इस शास्त्र का अपने ज्ञान नहीं था। हम जानते ही नहीं थे अपने इस शास्त्र के बारे में। हमको इस शास्त्र के बारे में जब ज्ञान होता है वो 19वीं शताब्दी में होता है, जब फ्रांस के एक विद्वान जो हैं ग्रोसे रोनियो इसकी खोज करके ले आते हैं और वो बताते हैं कि देखिए आपके पास कितना बड़ा है। और उसके बाद तब भारतवर्ष में लोग बनारस में, बड़ौदा में, कलकत्ता में उस नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियां तैयार की जाती हैं, खोज होता है और आगे बढ़ते हैं। 1964 में आकर के फिर एक रामकृष्ण कवि थे, उन्होंने संपादन किया अभिनव भारती का, और उस अभिनव भारती के संपादन के साथ जो है नाट्य शास्त्र की भी चर्चा उन्होंने की। और ये वही समय है देखिए कि केरल जैसे प्रदेश में कुडियाट्टम जो है वो पूरे नाट्य शास्त्र के का जो अनुशासन है, उस अनुशासन के साथ उसका प्रदर्शन होता रहा है। और कुडियाट्टम की भाषा, और ये कुडियाट्टम ज्यादातर भास के नाटकों पर आधारित है, और भास जो है संस्कृत नाटकों के सबसे सशक्त नाटककार रहे हैं। कालिदास से पूर्व के हैं। कालिदास बाद परवर्ती नाटककार हैं। कालिदास की भाषा में आलंकारिकता आपको मिलेगी, लेकिन जो भास के नाटक हैं उनमें आलंकारिकता उस तरीके की नहीं मिलेगी। उनके संवाद सरल और सहज हैं। तो इसीलिए नाटकों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह संवाद सरल और सहज है। यही आप नोट करते चलिए कि जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो बहुत कठिन भाषा का उपयोग करते हुए अगर हम पढ़ाएंगे तो जो कई स्तर के विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी उनको ग्रहण करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि कोई तेज विद्यार्थी भी होगा, कोई कमजोर विद्यार्थी होगा, कोई औसत दर्जे का विद्यार्थी होगा, और कोई विद्यार्थी ऐसा भी होगा जो उपेक्षित समुदाय का हो, वंचित समुदाय का हो। तो इस तरीके के जो डाइवर्स स्थिति वाले जो विद्यार्थी होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो विद्यार्थी होते हैं, कोई ग्रामीण होगा, कोई शहर का होगा, कोई गरीब होगा, कोई बहुत अमीर होगा, तो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो हमारी भाषा होनी चाहिए वो भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए ग्राह्य हो। तो जो मैं बात कर रहा था, तो कुडियाट्टम जो है वह
मंचित होता है नाट्य शास्त्रीय सैद्धांतिकी के आधार पर ही मंचित होता है। और ये सब कुछ हमको समझने में लगभग 100-150 वर्षों का समय लगा और तब हम समझ पाए। और इसका असर जो है हमारे देश में विशेष रूप से हिंदी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो हर प्रकार सभी भारतीय भाषाओं के नाटकों का मंचन करता है, उसको 6वें 7वें 8वें दशक के खत्म होने तक ये समझ में आया कि हमको अपनी परंपरा को जानना चाहिए और हम उसके माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दे सकें। तब वो लोक रंगमंच की ओर भी जाता है, शास्त्रीय रंगमंच की ओर जाता है जो संस्कृत का, और वो नाट्य शास्त्र को भी देखता है। और इस तरीके से तमाम जो प्रयोक्ता हैं बड़े बड़े, हबीब तनवीर, रतन थियम, शांता गांधी और कवलम नारायण पणिकर, ये तमाम जो रंगमंच के अध्येता हैं, बाबा कारंत ने हिंदी में सबसे अधिक काम किया है। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही हिंदी के विद्यार्थी रहे और नाटक के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम किया। तो ये सब जो चीजें हुई, तो मित्रों ये कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त होता है? तो यह हमको सब कुछ एक बात और बताते चलें, थोड़ा सा ध्यान। हमारा जो इसके पहले का रंगमंच रहा, ये जब 70-80 के दशक के बाद, तो उसके पहले जो रंगमंच हमारा था वो पश्चिम से प्रभावित था और अंग्रेजों के रहने के कारण जो पारसी थिएटर बना, तो हमारे लोक नाटकों को प्रस्तुत तो करता था, लेकिन उसका तरीका जो है वो पाश्चात्य रंगमंच का था और एक चौखटा रंगमंच जो है उसका उपयोग करते हुए वो काम करता। सीनरी और पर्दे जो है वाले पर्दे तो लगाता था, लेकिन एक ठेकेदार रंगमंच उसका होता था, जिसको हम यथार्थवादी या चौखटा रंगमंच या ड्राइंग रूमी रंगमंच, इस तरीके का नाम हम देते हैं। तो ये जो जब हमको इसकी पहचान हुई, तो हमको जानना चाहिए कि हम ये जो 36 अध्यायों वाला नाट्यशास्त्र है, उसमें हम क्या क्या जानते हैं। हम रंगमंच का जो प्रस्तुत करने वाला जो स्थान है उसके बारे में विवरण है, कैसा रंगमंच होना चाहिए, 3 तरीके का, विकृष्ट, मध्यम और ज्येष्ठ, और उसके बाद इनके 3 प्रकार, तो कुल 9 तरीके के रंगमंच हुए। और इनके साथ फिर यह भी चर्चा है कि रंगमंच पर कैसे प्रस्तुत किया जाता है, अभिनय कैसे किया जाता है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, हाथों का प्रयोग किस तरीके से करना है, पैरों का प्रयोग करना है, आंखों का प्रयोग कैसे करना है, भौहों का प्रयोग कैसे करना है। ये यक्षगान वगैरह में हम लोग देखते हैं कि कैसे भौहों का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरीके से कौन लोग नाटक करने के लिए समर्थ हैं, कैसे लोग होने चाहिए, नृत्य की गतियां कितनी हैं, संगीत में किस तरीके का आरोह अवरोह होता है, वाद्य कितने प्रकार के हैं, उन वाद्यों का प्रयोग कैसे होता है, नाटक के दर्शक कैसे तैयार करने चाहिए, सहृदय कैसे बनाना चाहिए, नाटक को देखने वाले और उनकी आलोचना करने वाले लोग कैसे होने चाहिए। ये लंबा है, इसलिए मैं संक्षेप में इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे रंगमंच की प्रस्तुति, और उसमें महत्वपूर्ण कौन है, तो दशरूपकार धनंजय को भी हम इस तरीके से देख सकते हैं। उन्होंने 3 तत्व बताए, वस्तु, नेता और रस। एक कंटेंट होना चाहिए, एक विषय वस्तु होनी चाहिए, नेता माने अभिनेता उसको करने, और उसकी प्राप्ति क्या होती है, तो रस की प्राप्ति होती है। तो वही जिस रस की चर्चा मैं कर रहा हूं वो नाट्यशास्त्र में भी उपलब्ध है, वो
धनिक धनंजय के यहाँ भी उपलब्ध है और सागर नंदी के नाटक लक्षण रत्न कोश में भी उपलब्ध है। यह रस क्या है? यह रस जो है वस्तुतः नाट्यार्थ है, नाट्य का अर्थ है। जब हम किसी चीज को, नाटककार ने लिखा, निर्देशक ने निर्देशन किया, अभिनेता ने प्रस्तुत किया, मिला किसको, उपलब्ध किसको हुआ? तो दर्शक को हुआ। या कविता है तो पाठ किसको हुआ? पाठक को या श्रोता को हुआ। तो जो ये मिल रहा है, जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं? हम सीधे सीधे गन्ने का रस जैसा रस नहीं प्राप्त कर लेते हैं कि ग्लास में आया, हम उसके अर्थ को प्राप्त करते हैं। प्राप्त हम उसके अर्थ को करते हैं और वह अर्थ जो है हमको आनंद तक ले जाता है, और जब वो आनंद हमको मिलता है तो वही रस है। लेकिन मुनि भरत ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या की है। ये जब दर्शन में हम गए तब फिर उलझाया चीज। कहा उन्होंने कि जिस प्रकार से नाना प्रकार के द्रव्य है और व्यंजन है, आयुर्वेद की है, उनका जैसे रस होता है वैसे ही काव्य का या नाटक का रस होता है, और उसका हम आस्वाद करते हैं। तो रस जो है वो आस्वाद्य हो जाता है। तो उसी तरीके से इसको हम फिर बीच बीच में हम आपको बताते चल रहे हैं कि जब हम विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो जैसे हमको कवि नाटक तब जो अभिनेता बोल रहा है, जो बोल रहा है, जिसको नाटककार ने लिखा है, नाटककार ने जो कुछ लिखा है, जब वह अभिनेता के माध्यम से होता हुआ मंचन के बाद दर्शक तक पहुंचता है, तो जब वो उसी रूप में पहुंच जाता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है। तो ठीक उसी तरीके से अध्यापक की जो भूमिका है वो ये है कि हम जो कुछ भी अपने विद्यार्थी को बताना चाहते हैं वो भली भांति सम्यक रूपेण यहां से चल करके और उसके पास तक पहुंच जाए, तो क्या होगा कि वो पूर्ण रूपेण संप्रेषित हो जाएगा। यह संप्रेषण की जो कला है, यह हमको अगर कहीं से मिल सकती है तो हमको थिएटर से मिलती है। कम्युनिकेशन की कला है, और यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। कहा भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत के समय के नाटककार हैं। देश की दशा बड़ी खराब थी और बहुत व्यंग्यपूर्ण लहजे में लिखते थे वो, कि अंग्रेजों को यह भी न लग पाए कि उनकी बुराई हो रही है, लेकिन वो जनता को प्रशिक्षित करने के लिए काम। उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, अभी ददरी का मेला बलिया में अभी अभी खत्म हुआ है, तो उन्होंने वहां ददरी के मेले में भाषण देते हुए कहा था कि अपना लोटा बेच करके भी नाटक देखना चाहिए। लोटा बेच करके, लोटा लोटा आप लोग लोटा समझते हैं? ए पॉट फुल ऑफ वाटर, दैट कैन बी फुल ऑफ वाटर, पानी पीने का साधन, स्रोत। और वो लोटा हर भारतीय के पास होता था, चाहे वो हिंदी क्षेत्र का हो चाहे किसी और क्षेत्र का, और लोटा और डोरी, ताकि वो रास्ते में कहीं भी कुआं मिले तो पानी निकाल कर पी। तो जो इतनी महत्वपूर्ण चीज है उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि लोटा बेच करके भी, जीवन की सबसे अमूल्य निधि लोटा है, उसको बेच करके भी आप नाटक देखिए, क्योंकि नाटक ही एक ऐसा है जो कि आपको अच्छी तरीके से आप तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। इसीलिए नुक्कड़ नाटक, आजकल ढेर सारे संगठन हैं जो अपनी बात को कहना चाहते थे, वो नुक्कड़ नाटक का सहारा लेते थे। तो हम अध्यापन की दृष्टि से भी इस कला का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, वह क्या करता है ये महत्वपूर्ण है, ये जानना। 37 अध्यायों में निबद्ध जो ये नाट्य शास्त्र है, उस नाट्य शास्त्र की जो सबसे बड़ी बात है वो ये क्या है? मुनि भरत
ने इस शास्त्र को ब्रह्मा से प्राप्त किया था। ब्रह्मा से उन्होंने प्राप्त किया था और ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया था। और ऋषि क्या चाहते थे? एक क्रीडनीयक चाहते थे। क्रीडनीयक माने खेल, क्रीड़ा, क्रीड़ा माने खेल। तो खेलने वाली वस्तु, खेलने वाली वस्तु। इसीलिए आप लोग देखते होंगे ये जो लोक में प्रचलित नाटक हैं, इनके नाम ऐसे ऐसे हैं जो जिसका अर्थ निकलता है खेल। जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं तमाशा, तो तमाशा क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि तमाशा देखा जा सकता है। तमाशा जो कोई खेल होता है वो तमाशा के रूप में दिखाई देता है। तो खेल, या कहीं कहीं इसको खेला भी कहते हैं किसी किसी जगह पर। तो ये क्रीडनीयक चाहिए था और वो क्रीडनीयक दिया ब्रह्मा ने। और क्रीडनीयक जो दिया वह कैसे दिया? तो कहा कि बहुत संसार में ज्ञान का जो स्रोत था हमारी जानकारी में, वो ये था वेद थे। वेद 4 वेद थे। ये सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो पाठ, संवाद, रस, अर्थ और रस, ये 4 चीजें जो है हमको मिली। गा लिया, 1 मिनट हो। तो ये संवाद, और रस, वेदों में निहित जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब लोग नहीं हो सकते। जैसे आज के समय में हम में से कोई वेदों का ज्ञाता नहीं है। जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति से पढ़ने वाले जो लोग हैं संस्कृत के, जो वेद का अध्ययन करते हैं, उनको छोड़ करके हम सामान्य लोग जो हैं उनको वेद का ज्ञान नहीं है। तो जब वेद में क्या है ये हमको नहीं पता है तो हम कैसे जान सकते हैं? लेकिन वेदों में जो कुछ है वो है क्या? वेदों में जो कुछ है वो ज्ञान केवल, जिसको हम आज कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन की कला, जीवन की शैली, जीवन जीने का तरीका, ये जो है यही केवल वेदों में निहित है। वेदों का सार जो है वो यही है कि हम मनुष्य के रूप में कैसे जीवित रहे, कैसे चले, संसार में कैसे रहे और कैसे प्रगति करे। कहा लेकिन कैसे करे, ये जो तरीका उसमें दिया हुआ है उस तरीके का ज्ञान सामान्य मनुष्य को नहीं होता है। सामान्य मनुष्य को भी वह ज्ञान हो जाए और खेल खेल में हो जाए, मनोरंजन करते हुए हो जाए, ये अवधारणा जो दी है वह नाट्यशास्त्र में मिलती है। और इसीलिए नाट्यशास्त्र को कहा मुनि भरत ने, पंचमम वेदम करोम्य हम, 5वां वेद मैं करता हूं, कर रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वेद की 5वें वेद की रचना कर रहा हूं जिसमें हमको वह ज्ञान मिले जो 4 वेदों में निहित है। तो यह दिया ऋग्वेद से पाठ मिला और सामवेद से गीत और गायन मिला और यजुर्वेद से अभिनय मिला और अथर्ववेद से रस मिला। ये 4 चीजें जो हैं मिल करके
पांचवा वेद जो है, नाट्य वेद जो है, उसका उद्भव होता है। और इस नाट्य वेद में जो असली बात है वो कहा, 5 सवाल किया ऋषियों ने और उन 5 सवालों का जवाब दिया। 5 सवालों का जवाब जो था वो कैसे था? पहला सवाल उसमें था कि नाट्यशास्त्र की रचना क्यों की गई और इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है। और तब उसके उत्तर में मुनि भरत ने जो कहा वो ये कहा कि धर्मम अर्थम यशस्यंच सोपदेश्यम ससंग्रहम भविष्यतश्च लोकस्य सर्वकामानुदर्शकम सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्याख्यम पंचमम वेदम सेतिहासम करोम्यहम्। उसके इतिहास सहित उसकी मैं रचना कर रहा हूं। कहा कि भगवान ब्रह्मा ने सभी वेदों का स्मरण करते हुए संकल्प किया कि मैं नाट्य वेद ऐसे 5वें वेद का इतिहास सहित रचना करता हूं। और जिसकी रचना करता हूं उसमें क्या क्या है? धर्म्यम, धर्म है, अर्थम, अर्थ है, यशस्यम च, उसमें यश भी है, नाटक करने वाले लोगों को यश की भी प्राप्ति होती है और ये यश प्रदाता है, और उपदेश करने वाला है, और संग्रह से युक्त भावी जगत को के लिए सभी कार्य के लिए मार्गों का पथ प्रदर्शक हो, पूर्ण ज्ञान देने वाला है ये, और सभी शिल्पों को प्रदर्शित करने वाला है। और इस तरीके से उन्होंने कहा। दूसरा प्रश्न जो है कि इस नाट्यवेद के कितने विभाग हैं, तो उसके उत्तर में उन्होंने बताया कि वाचिक अभिनय, संगीत, अभिनय और रस के बारे में, इसके बारे में बताया जाएगा। तीसरा प्रश्न कहा कि नाट्यवेद के अंग कितने हैं, तो कि सभी कलाओं का समन्वित रूप से उपयोग करते हुए रस सृष्टि करना जो है यह इसका लक्ष्य है। उसकी दृष्टि से अभिनय आदि जितने प्रकार के अंग हैं उनका उपयोग करना चाहिए। और चौथा प्रश्न किया कि नाट्य के अंगों को समझने के लिए क्या प्रयोग आवश्यक है, और तो उसके जवाब ने उसका उत्तर दिया कि आंख और कान से प्रत्यक्ष होने के कारण जो है वह इसके सारे अंगों को समझना आवश्यक है, समझना सहज है। मतलब जब आप अभिनय देखते हैं, आंख से आप उसका एक्शन देखते हैं, उसकी क्रिया देखते हैं, उसका चलना हो रहा है वो सुनते हैं। और पांचवा प्रश्न था कि इन अंगों का स्पष्ट अर्थ प्राप्ति हेतु नाट्य प्रयोग कैसे करना चाहिए। 5 सवाल किया था ब्रह्मा जी से ऋषियों ने। तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि उसका उत्तर यह है कि जो सारी की सारी प्रक्रिया है नाट्य की उत्पत्ति से लेकर के और प्रस्तुति तक, और उसको देखने पर उस पर विचार करने से संबंधित ये सारा का सारा जो प्रसंग है वह इसका जवाब है। तो तीसरी अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि है क्या। जब हम देखें नाटक और नाट्य 2 शब्द हैं, स्पष्ट करता चलूं। ये नाटक एक जो है, नाटक एक लिखित जो वस्तु है जिसमें रंग निर्देश इत्यादि होते हैं, वह किसी का भी नाटक, चाहे कालिदास का नाटक हो, चाहे जयशंकर प्रसाद का नाटक हो, चाहे विजय तेंदुलकर का नाटक हो, चाहे किसी भी नाटककार का किसी भी भाषा के नाटक
नाटक तो जुड़ा है, नाट्य आता है। नाट्य में नाट्यालेख और रंगमंच प्रस्तुति, ये दोनों को अर्थ देने वाला ये शब्द है नाट्य। तो कहा कि ये नाट्य जो है वो है क्या चीज, तो कहा कि यह त्रैलोक्य के समस्त भावों का अनुकीर्तन है। नैकांतो अत्र भवताम देवानां चानुभवं त्रैलोकस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। त्रैलोक्य के भावों का मतलब इसमें राक्षस होता है, इसमें राक्षसों का भी चित्रण होता है, इसमें सामान्य मनुष्य का भी चित्रण है, इसमें पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, भौतिक उपादान भी हैं। तो जो कुछ भी है वो सबका जो है प्रयोग जो है इसमें होता है, उनका अनुकीर्तन होता है, उनके बारे में कहा जाता है, बताया जाता है। नाना भावोपसंपन्नम नाना अवस्थान्तरात्मकम लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम एतन्मया कृतम। लोक वृत्त का अनुकरण, भाव का अनुकीर्तन कह दिया, उसके बाद फिर कहा लोक वृत्त, वृत्त मतलब चरित्र, लोक के चरित्र, लोक का स्वभाव है, उस स्वभाव का भी अनुकरण करता है। जैसे जब हम कोई नाटक करते हैं तो किसी राम का अनुकरण कर रहे हैं, कृष्ण का अनुकरण कर रहे हैं, कोई नाटक राजनीति से संबंधित है तो उसमें किसी मंत्री का अनुकरण कर रहे हैं, किसी अधिकारी का अनुकरण कर रहे हैं, गांव से संबंधित है तो हम गांव के ग्रामीण सामान्य व्यक्ति के का अनुकरण कर रहे हैं, और वहीं पंचायत के अध्यक्ष के का भी, उसके वृत्त का भी, उसके चरित्र का भी अनुकरण कर रहे हैं। महिला पात्र है तो उसके अनुसार कर रहे हैं, सीता का अनुकरण कर रहे हैं या और कोई, तो हम अनुकरण करते हैं। लोक के भावों का अनुकरण है, लोक के वृत्त का अनुकरण है। और लोकोपदेश जननम नाट्यम एतत् भविष्यति, लोक को उपदेश देने वाला यह नाट्य होता है। लोक को उपदेश, लोक के वृत्त का अनुकरण करते हैं और उस वृत्त के अनुकरण के द्वारा ही हम शिक्षा देते हैं, उसी से हमको ज्ञान होता है। तभी हम जान पाएंगे कि हम को कैसे रहना चाहिए, हमारे जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए, क्या ग्रहणीय है, क्या छोड़ने लायक है, क्या अनुकरणीय है और क्या अनुकरणीय नहीं है। तो करणीय और अकरणीय, करने लायक क्या है और ना करने लायक क्या है, इसका ज्ञान जो है हमको जब हम अपने सामने प्रत्यक्ष देखते हैं तो होता है। तो उसी तरीके से अगर हम इसको शिक्षा के क्लासरूम टीचिंग को देखें तो विद्यार्थी भी सचेत भाव से अपने अध्यापक को देखता है, तो अध्यापक जितना बोलता है उससे अधिक वो उसको देख करके समझता है, उसके एक्शन से समझता है, उसके विचार अनुकरण करके समझता है। तो हम ये जो थिएटर है, ये जो रंगमंच है, यह पूर्ण कला है। आगे कहते हैं कि ऐसी कला है न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्मम नाट्ये अस्मिन् यन्न विद्यते। संसार का ऐसा कोई ज्ञान, ऐसी कोई कला, ऐसा कोई शिल्प, ऐसा कोई योग और न ही ऐसा कोई कार्य है जो इस नाटक में नहीं होता है। तो यहाँ नाट्य में सब कुछ विद्यमान है, सब कुछ। तो ऐसा जो है नाट्यशास्त्र, ऐसे नाट्यशास्त्र की कल्पना जो है मुनि भरत ने की और दी। सवाल ये है कि ये इसके साथ ही इसमें यह भी है कि दर्शक जो है, दर्शकों में कुछ लोग कभी कभी नाटक देख के आते हैं या सिनेमा, आजकल सिनेमा देखने की परंपरा भी ज्यादा है। आप सिनेमा देख के आते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया होती, कोई सिनेमा अभिभूत होते हैं कि बहुत सुंदर था, कोई नाटक देख के आते हैं तो बहुत अभिभूत रहते हैं, बहुत अच्छा नाटक हुआ।
कोई आते हुए ही कहते हैं, आने के तुरंत बाद, कि वो पैसा जो है वो डाढ़ हो गया, किसी काम का नहीं था, अच्छा नहीं लगा। ये हम कैसे कहते हैं? ये हम तब कहते हैं जब हमको परख होती है कि एक तो सामान्य है कि आपको उसका आनंद नहीं मिला दर्शक के रूप में, और दूसरा एक है कि आपको उसके गुणों की पहचान हो, अभिनय कला को आप जानते हो, मंच की कला को जानते हो, किस तरीके से प्रकाश व्यवस्था होती है उस कला को जानते हो, ये सारा कुछ जानते हो, मंच की व्यवस्था को जानते हो, और तब आप किसी नाटक की आलोचना करेंगे। यह है नाट्यशास्त्र। यह भी बताता है कि आलोचक कौन हो सकता है नाटक का, कौन देखकर, तो उसके अंदर ये सारे गुण होना चाहिए। उसको नृत्य का ज्ञान होना चाहिए, उसको संगीत का ज्ञान होना चाहिए, उसको कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आज के समय में कोई भी हो जाता है, कोई भी आलोचक हो सकता है, लेकिन फिल्म की भी आलोचना करने के लिए यह आवश्यक है कि उसको सिनेमा का पूरा ज्ञान हो कि कैसे कैसे सिनेमा बनता है, उसमें क्या क्या कमियां कहां से हम निकाल सकते हैं। यह ज्ञान जो है जिस व्यक्ति के अंदर हो, उसी को आलोचना का अधिकार है, और ऐसे व्यक्ति को वहां प्रासनिक कहा जाता था। तो अब एक और चीज जो छूट रही है, समय है हमारे पास में? हाँ, अभी है। तो हमारा जो ये रंगमंच है, मैंने जैसे चर्चा की कि हमारा रंगमंच पश्चिम के रंगमंच से भिन्न है। पश्चिम का जो रंगमंच है वो ड्राइंग रूमी रंगमंच है, चौखटा रंगमंच है, और यथार्थवादी रंगमंच है, उसको यथार्थवादी रंगमंच कहते हैं। हमारा जो अपना भारत का रंगमंच है, शास्त्रीय रंगमंच भी, संस्कृत का रंगमंच भी, और लोक नाटकों का रंगमंच भी, यह अयथार्थवादी रंगमंच है, नॉन रियलिस्टिक रंगमंच है। इस रंगमंच की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह अयथार्थवादी है। दूसरी जो विशेषता है वह एपिक है, महाकाव्यात्मक रंगमंच है। और इन सब के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह कल्पनाशीलता का होना जरूरी है। तो कल्पनाशील रंगमंच है, तो नॉन रियलिस्टिक है, इमेजिनरी है और एपिक है। तो अयथार्थवादी, कल्पनाशील और महाकाव्यात्मक रंगमंच, ये तीन गुण जो है हमारे, और इन तीनों के लिए जो जरूरी है वो है वस्तु, नेता और रस। तो तीन कंटेंट के आधार पर और तीन प्रस्तुति के आधार पर। कंटेंट के आधार पर वस्तु, उसको प्रस्तुत करने वाला नेता, और उपलब्ध होने वाली चीज रस। और जो हमारी परिकल्पना है वो क्या? इसलिए कालिदास के नाटक 3 घंटे में नहीं खत्म होते हैं। हमारे लोक नाटक भी जो है 3 घंटे में नहीं खत्म होते हैं, रात रात भर चलने वाले होते हैं, कई महीने चलने वाले होते हैं। तो इसको हम कैसे मान लें कि 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, एक ही जगह पे खत्म हो जाएगा? उसके लिए स्थान और उसकी अपेक्षा उस तरीके की नहीं होती। आपको एक उदाहरण दें, हमारे बनारस में, काशी में रामनगर एक जगह है, रामनगर की रामलीला होती है। वो लगभग महीने 1.5 महीने चलती है, और उस महीने 1.5 महीने चलने वाली रामलीला के दर्शक जो हैं वो 1000, 2000, 10,000 में नहीं होते हैं, वो लाखों में होते हैं। और उसको लक्खी मेला कहा ही जाता है। लक्खी माने 1 लाख एंड अबव, 1 लाख और उससे ऊपर। और आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी प्रकार के
ट्यूबलाइट, बल्ब, स्पॉटलाइट, इसकी व्यवस्था नहीं होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रकार के माइक की व्यवस्था नहीं होती है, बिना माइक के संवाद बोले जाते हैं और उसको वो लाखों लोग जो हैं सब लोग सुनते हैं। बीच बीच में रामचरितमानस का पाठ होता चलता है और फिर संवाद आते हैं। और जो उसका सूत्रधार है व्यास जी, वो जैसे पाठ समाप्त होता है वैसे बोलते हैं, चुप रहो सावधान, और वो सब सुनते हैं। और साइलेंट तो वैसे भी रहता है, शांति तो वैसे भी रहती है, उसके बाद एकदम पूर्णतया शांति। और आप आश्चर्य करेंगे, सब लोग सुनते हैं, तो वो सुनते कैसे हैं? अगर हमारी बात सुनते हुए आप कान ऐसे कीजिए, ऐसे करिए, तो आपको लगेगा, आपको पता लगेगा, जैसे मैंने किया है, हथेली को लीजिए और कान को ऐसे कीजिए, आप देखेंगे कि हमारी आवाज जो है थोड़ी सी बढ़ गई है। अनुभव हुआ कुछ? फिर से कीजिए, ऐसे कीजिए, ये ऐसे देखिए, ये ऐसे कीजिए, एकदम एकदम ऐसे करिए और कान पर ऐसे लगा लीजिए, तो आपको लगेगा कि आपकी आवाज बढ़ गई है। तो अपने आप वो आवाज लाओ तो उस अंतिम व्यक्ति तक सुनाई पड़ता है। तो ये कल्पना इस तरीके से कैसे ध्वनि विस्तार किया जाता है, यह कल्पना भी हमारे भारतीय रंगमंच की कल्पना है। तो हम हमारी इस रंगमंच की इस विशिष्टता को, जो हमारे संस्कृत रंगमंच के पास भी थी और हमारे पारंपरिक लोक रंगमंच के पास भी थी, उसकी पहचान इन विद्वानों ने किया। उसको पहचाना शांता गांधी ने, रतन थियम ने, बाबा कारंत ने, कवलम नारायण पडिक्कर ने, आदि आदि। और यह समझ करके 80 के बाद का जो समय है उसको विस्तार देते हैं। तो पश्चिम का रंगमंच, उसका अपना एक अलग इतिहास है। उस इतिहास का असर उसके उन पश्चिमी देशों का अपना एक इतिहास है। उनके अपने देश के इतिहास का जो असर है वहां पर ट्रेजेडी का है। हमारे यहाँ सुखात्मक है, दुखात्मक नहीं है। पश्चिम का रंगमंच जो है वो दुखात्मक है, ट्रेजेडी का है। हमारे यहाँ दुख भी जो है वह आनंद की अनुभूति कराता है। उन पहुंचने का लक्ष्य एक ही है। उनके यहाँ दुख की अनुभूति के साथ आपका चित्त का परिष्कार होता है, विरेचन होता है। हमारे यहाँ दुख भी जो है सुख के रूप में परिवर्तित होकर के हमारे चित्त को सच्चिदानंद की प्राप्ति कराता है। हमारा कलुष से मुक्त होता है हमारा चित्त। तो इस तरीके से अभी एक विद्वान, बहुत बड़े 84-85 वर्ष की अवस्था में अभी दिवंगत हुए, कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, तो बहुत अच्छे अभिनेता, बहुत कुशल निर्देशक, संस्कृत रंगमंच के और संस्कृत मंच के रंगकर्म के बहुत पंडित विद्वान व्यक्ति, जिन्होंने एनएसडी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा पश्चिम का रंगमंच है उसको अगर हम नकार नहीं सकते, उसकी दृष्टि अलग है, हमारी दृष्टि अलग है, इतना अंतर है उसका क्यों। लेकिन अगर उसको हमको देखना है तो उन्होंने लिखा कि जिस तरह यूनान की त्रासदियों को यूनान से अलग करके हम नहीं देख सकते हैं, जहां की वो लिखी गई है, जहां पर ईशहाक देवता है, जहां मनुष्य यातनाओं से गुजरता है, थुकाष्टा का क्रंदन, इडिपस का बिलखना, ये सब बेवजह नहीं है। उसी तरह पृथक कर यूनानी ताजसी को हम नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह
संस्कृत नाटकों को या संस्कृत रंगमंच को देखना भी विश्व दृष्टि के अभाव में देखना होगा और वो आधा अधूरा होगा। तो कमलेश दत्त त्रिपाठी, उसके बाद स्वर्गीय हो गए भोला शंकर व्यास जी, ये भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य अध्यापक थे। राधा वल्लभ त्रिपाठी सागर में थे। रेवा प्रसाद द्विवेदी, ये जो विद्वान हैं, जो भारतीय चिंतन परंपरा के विद्वान हैं, जो नाट्यशास्त्र की परंपरा के विद्वान हैं, इन लोगों ने जो ऐसे रंगचित्रों, भारतीयता जो है उसकी जो सृजनशीलता है, रचनात्मकता है, उसकी गतिशीलता में, प्रोग्रेस में, हमेशा निरंतर गतिशीलता में उसको देखते हैं कि कैसे हमारा रंगमंच विकसित होता चला गया है। हम उसमें कुछ जोड़ते गए हैं, हम उसको लेकर के जड़ के रूप में बैठे नहीं हैं, हमने निरंतर विकास किया है, लेकिन मूल आधार हमारा जो है उसको हमने बचा के रखा है। तो यह क्षेत्र जो है, क्योंकि जो क्षेत्र है ये रंगमंच का क्षेत्र जो है वो प्रयोग का है, और प्रयोग जो है अलग अलग होते हैं। आज तक कालिदास के शकुंतला का भारतवर्ष से लेकर के विदेशों में अनेक प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन सब एक ही जैसे हैं? नहीं, सारे प्रदर्शनों में कुछ न कुछ नवीनता रही है। उसी तरीके से जैसे हम अध्यापन का कार्य करते हैं, तो जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही दूसरा अध्यापक भी पढ़ाता है, ऐसा नहीं। उसी विषय को मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं, उसी विषय को, उसी बात को एक दूसरा अध्यापक जो पढ़ाएगा वो अपने तरीके से, दूसरे तरीके से पढ़ाएगा, लेकिन लक्ष्य हमारा जो है वो एक ही है कि हम जो बताना है उसको विद्यार्थी तक ठीक से पहुंचा दें। तो ठीक रंगमंच का यही उद्देश्य, जितने भी नाटक, इसे कहा कि नाटक जो है भाव त्रैलोक से भावानुकीर्तन, त्रैलोक के भावों का अनुकीर्तन है। कीर्तन माने, हम जब कीर्तन करते हैं, कीर्तन शब्द सुना है आप लोगों ने? कीर्तन, राम 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 राम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जी सर। क्या होता है? बार बार राम का नाम लेते हैं, बार बार कृष्ण का नाम लेते हैं, तो ये जो है यही कीर्तन है। तो जब हम कीर्तन करते हैं, बार बार किसी चीज को करना मतलब कीर्तन है। तो किसी नाटक को जब हम बार बार करते हैं, लेकिन जब जब वो नाटक होता है तब तब वो नए रूप में सामने आता है। जब जब वो कोई दो लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, आज नाटक का निर्देशन मैं करूं तो मैं जिस तरीके से करूंगा उसका रूप दूसरा होगा, कोई दूसरा व्यक्ति करेगा वो दूसरा होगा। उसमें अभिनय करने वाला व्यक्ति अगर एक जो कर रहा है वह दूसरे तरीके से करेगा, दूसरा करेगा दूसरे तरीके, उसी पात्र का अभिनय। तो ये नाटक जो है लोक के भावों का अनुकीर्तन है। बार बार कहा जाए, एक ही चीज को बार बार कहा जाए, लेकिन जब भी कोई कहेगा हर दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से कहेगा, लेकिन कहेगा एक ही चीज। तो हम यह लोक के भावों का अनुकीर्तन। एक चीज और छोड़ते हैं, कुछ चीज आप अध्यापन के हिसाब से वो ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम चलते हैं तो इसमें जो भूमिका है वो भूमिका किसकी है? अब नाटक में निर्देशक की जो भूमिका होती है वह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी तरीके से क्लासरूम टीचिंग में जो भूमिका होती है वह निर्देशक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो निर्देशक क्या करता है? निर्देशक जो होता है वो प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति होता है। तो जिस तरीके से नाटककार के नाटक को नाट्य प्रस्तुति के अनुकूल बनाने का काम निर्देशक करता है, जरूरत पड़ने पर किसी चीज को छांटता है, जरूरत पड़ने पर कुछ थोड़ा बहुत
प्रस्तुति की दृष्टि से जोड़ता है नाटक की मूल आत्मा को सुरक्षित रखते हुए। नाटक की मूल आत्मा को समाप्त करना लक्ष्य नहीं होता। इसीलिए कभी कभी ढेर सारे नाटककारों का अनुभव है, कई नाटककारों ने लिखा है, मोहन राकेश वगैरह ने, कि जब वो ओमपुरी प्रस्तुत कर रहे थे तो उसको मोहन राकेश ने देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, हमको अपने इस आधे अधूरे में यहाँ कुछ दूसरे तरीके से लिखना चाहिए। तो यह अनुभव होता है। कैसे करता है व्यक्ति? तो निर्देशक की जो भूमिका होती है वो भूमिका होती है कि नाटक की जो वस्तु है उस वस्तु को प्रस्तुति के अनुकूल बना सके। इसीलिए अध्यापक की जो भूमिका होती है वो यह होती है, ठीक निर्देशक की तरह, कि जो भी पाठ हमको पढ़ाना है वह प्रस्तुति की दृष्टि से, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने की दृष्टि से उसको ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सके। उसमें जरूरी चीजें होती हैं वो छांटते हैं। फिर आता है कि अब निर्देशक का जो दूसरा काम होता है कि पात्रों का चयन करना, कौन सा व्यक्ति किस पात्र के अनुकूल है, कर सकता है, किसके ऊपर उस पात्र की जिम्मेदारी दी जा सकती है, निर्देशक का काम होता है। तो निर्देशक की जो भूमिका है ठीक वही भूमिका अध्यापक की होती है कि वो किस तरीके से किस विद्यार्थी को किस कार्य के निमित्त नियोजित कर सकता है, और पाठ को पढ़ाने का जो तरीका होगा किस विद्यार्थी के लिए कैसा होगा, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की। तो यहाँ अध्यापक की भूमिका निर्देशक की तुलना में दो तरीके की हो जाती है। एक तो वो विद्यार्थी में उस योग्यता का चयन करे कि हम कैसे उसको किस कार्य के लिए नियोजित करें, और दूसरा यह देखना कि कैसे हम किसी विद्यार्थी को इस तरीके से प्रशिक्षित करें कि वह सबके स्तर का हो जाए। तो एक दोहरी जिम्मेदारी जो है वह एक अध्यापक के ऊपर होती है। उसके अंदर यह होना चाहिए कि वह जान सके कि हम किस विद्यार्थी में कौन सा गुण है, ग्रहण करने की क्षमता कितनी है और उसके अंदर गुण कौन सा है। उन गुणों का उपयोग करते हुए पाठ और क्लास दोनों का सामंजस्य बैठाते हुए वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। और तीसरी चीज जो है वो नाटक की दृष्टि से जो है वेशभूषा इत्यादि का है। तो हर क्षेत्र का नाटक की दृष्टि से निर्देशक नाटक के अनुरूप देखता है कि कैसा वेश होना चाहिए, क्या पहनावा होना चाहिए, किस तरीके का सामने बनना चाहिए। तो निर्देशक के ऊपर जिस तरीके से पूरी की पूरी भूमिका होती है नाट्य की वस्तु से लेकर प्रस्तुति तक, नाटक का चयन करना, नाटक को करने योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना, उनको प्रशिक्षित करना, उनके लिए उनके अनुरूप वस्त्र इत्यादि का, वस्त्र विन्यास, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करना उसके अनुरूप, और फिर नाटक की प्रस्तुति करना, प्रकाश ध्वनि इत्यादि। आज के समय में प्रकाश ध्वनि, अब तो उसके अलावा ढेर सारे काम हो जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड, सब कुछ कंप्यूटर पर नियंत्रित कर दिया जाता है और वो होता रहता है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बहुत ज्यादा वाद्य इत्यादि को मंच पर एकत्रित करने की आवश्यकता ही नहीं।
टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी का भी कैसे उपयोग करना, यह जो है निर्देशक का ही दायित्व है। ठीक उसी तरीके से हम सारी चीजों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को किस तरीके से प्रभावित, संचालित और अपनी बात उन तक संप्रेषित कर सकते हैं, ये सारा का सारा जो दायित्व होता है वो अध्यापक का होता है। तो हमारी जो अपनी ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा में हमारी अपनी जो ज्ञान प्रणाली है, उस ज्ञान प्रणाली में जो ये रंगमंच है, हमारी दृष्टि में रंगमंच का के जो गुण है, रंगमंच की जो विशेषता है, रंगमंच का जो तरीका है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार हम अपनी क्लासरूम टीचिंग को भी अच्छे तरीके से आगे हम बढ़ा सकते हैं अपने विद्यार्थियों को, क्योंकि नाटक का उद्देश्य ही है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन तो अंग्रेजी का शब्द है, शायद उतना सटीक अर्थ संप्रेषण का वो दे पाता है कि नहीं दे पाता है, हम नहीं जानते। कम्युनिकेशन केवल सूचना है, लेकिन संप्रेषण जो है केवल सूचना मात्र नहीं है, संप्रेषण है जो सम्यक रूपेण प्रेषित, माने सम्यक माने बराबर बराबर, जो कहा गया है वही पहुंच जाए तब वो संप्रेषित होता है। तो ये जो संप्रेषण है, यह संप्रेषण का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत ही जो है उसका आधार जो है हमारा भारतीय रंगमंच है, जो पूर्ण रूपेण जो है नाटककार की बात श्रोता या दर्शक तक या भावक तक पहुंचता है। ठीक उसी तरीके से अध्यापक की जो भूमिका है, जो एक शिक्षण जगत की जो भूमिका है, वो ये है कि हम विद्यार्थी तक अर्थात अध्येता तक या ज्ञान प्राप्तिकर्ता तक हम अपनी बात को सम्यक रूप में प्रेषित कर दें, तो समझ लीजिए कि वह अध्यापन एक सार्थक और सफल अध्यापन होता है। तो ये बड़ी बात है कि हम अपनी जड़ों को की ओर देखने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और उन स्रोतों की खोज कर रहे हैं जिन स्रोतों से हम अपना जो ज्ञान का स्तर है उसको बढ़ाने के साथ साथ हम सामाजिक संलग्नता को भी और अपनी राष्ट्रीय संलग्नता को भी हम आगे अग्रसर कर सकने में समर्थ हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पूछना अगर किसी को हो कुछ तो पूछ सकता है। पूछना हो तो, लेकिन सर सच में बहुत मीन्स बांध के रखा आपने हमें कि एकदम इतना सूत्रबद्ध बताया आपने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से। और मुझे लगता है जिसने नाट्यशास्त्र पढ़ा ना सर, वही एक अच्छा अध्यापक बन सकता है। कि आपने कहा कि जिस प्रकार आपने हमें बांध के रखा कि हम भूल गए कि हम कहाँ बैठे हैं, हम एकदम एकाकार हो गए हैं सर। और जो आनंद हमें मिला वो अद्भुत है सर, सच में बहुत बड़ा आनंद, बहुत बहुत आनंद मिला। और जैसे कि आपने कहा कि आपने तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति रस की जो बात आपने की कि सच में आज जो भी अध्येता हैं उन्हें नाट्यशास्त्र का ये पेपर रखना ही चाहिए सर, ऐसा मुझे लग रहा है कि जब तक हम रस का रस की बात नहीं करेंगे विद्यार्थियों से, जब हम कविता पढ़ा रहे हैं या कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, जैसे कि प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि हम एक प्रकार का अभिनय करते हैं, उनको बांध के रखते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस अभिनय से जब तक हम उनसे एकाकार नहीं होते हैं कि विद्यार्थी और शिक्षक जब तक एकाकार नहीं होते, दोनों आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो ये नाट्यशास्त्र ने सिखाया, ये भरत मुनि ने सिखाया, ये विभाव अनुभाव व्यभिचारी सब कुछ जो आपने बताया सर। और नाट्यवेद की बात की, यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद तक तो हम जानते ही हैं, नाट्यवेद तक की बात आपने की। और उसके बाद आगे जाकर जो लक्खी मेला की बात की कि वो अद्भुत है सर, कि लाखों लोग जहाँ पर सुनते हैं, देखते हैं और काफी लंबे समय तक ये खेला चलते हैं सर। हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ भी दशावतार होता है। तो इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, इसके लिए तो कहीं लाइट्स और प्रकाश योजना वगैरह सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सब कुछ अद्भुत है सर। ये हमारी परंपरा है, जिस परंपरा से आपने हमें आज जोड़ा। मुझे लगता है कि किसी को कुछ पूछना है
कि मेरी तरह बाकी लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए सुनते हुए। और अगर Request. नहीं, प्रिंसिपल सर गए हैं अभी बाहर, उनको मीटिंग थी एक। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सर, और बाकी जो प्रतिभागी हैं उन्हें भी अच्छा लगा ही होगा, और मेरे सामने भी बैठे हैं वो भी लोग कह रहे हैं कि अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा सर। हाँ, किस आपको कुछ कहना है मैडम? Somebody else. कोई पूछा है? और कोई कुछ, किसी को कुछ पूछना है? आपको कुछ कहना है मैडम? सो हम इतना ही कह सकते हैं कि हमें सच में सर फिर एक बार अपनी परंपराओं से जुड़ने की, बहुत गहराई से जुड़ने की आवश्यकता है। दीपाली ने लिखा है कि नाटक के साहित्यिक और रूपांतरणात्मक पहलुओं को शिक्षा में कैसे शामिल करके शिक्षकों को छात्रों के साथ संवादपूर्ण और सुव्यवस्थित सीखने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। ये प्रश्न है सर आपके लिए कि नाटक के माध्यम से हम सुव्यवस्थित ढंग से कैसे सीख, यही तो बात हम अभी कर रहे हैं एक्चुअली सर। नाट्य जैसे हम साइकोलॉजी रखते हैं ना सर एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में, उसी प्रकार नाट्य शास्त्र रखना चाहिए। नहीं, वो देखिए साइकोलॉजी विषय है, नाट्यशास्त्र तो रख सकते हैं उसको चाहे तो, लेकिन नहीं भी रखते हैं तो जैसे साहित्य पढ़ते हैं जो, पता नहीं आप इसमें प्रतिभागी लोगों में से हिंदी या अंग्रेजी या किसी कोंकणी साहित्य या सभी है किसी सर, भाषा सभी का सब जुड़े हुए लोग हैं। तो प्राय नाटक जो हम पढ़ाते हैं, हम लोगों के पाठ्यक्रम में हर भाषा में एक नाटक होता है। नाटक जो पढ़े वो कोई रंगमंच का कुछ भी नहीं बताते हैं उनको, वो केवल ये बताते हैं कि नाटक की भाषा कैसी है, उसका शिल्प कैसा है और क्या लिखा है नाटककार ने और उसकी आलोचना। लेकिन जब सवाल पूछते हैं तो उस सवाल में, पेपर में सवाल पूछते हैं कि अमुक नाटक की रंगमंची आधार पर आलोचना कीजिए। हर भाषा में यही होता है। तो इसका क्या मतलब है? विद्यार्थी को कैसे पता लगेगा कि रंगमंच है क्या? तो कम से कम जो साहित्य के विद्यार्थी हैं तो उनको पूरा नाट्यशास्त्र तो पढ़ाना बड़ा कठिन काम है जी, लेकिन जो कुछ प्रमुख चीजें हैं, जब तक उनको अभिनय करने के तरीके से उनका मंचन न किया जाए क्लासरूम में आप ठीक है पूरा मंचन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ संवादों को बोलने का तरीका, जैसे कहा जाता है कि रावण नाटक की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है कि लोक धर्मी और नाट्य धर्मी दो चीजें होती हैं। लोक धर्मी जैसे कि हम लोग जैसे जिस तरीके से बातचीत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, वो लोक धर्मी है संसार का। लेकिन नाट्य धर्मी जो होता है उसमें थोड़ी सी अतिशयता होती है, आवाज में मेलोडी होती है, किसी मैंने लाउडनेस होता है, किसी तरीके का अलग तरीके को, जैसे हम किसी को सामान्य रूप से कोई डांटता है किसी को तो डांट कर पूछता है कहाँ जा रहे हो, अब कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तीनों में अंतर हो गया है। कहाँ जा रहे हो सामान्य से, कहाँ जा रहे हो अलग लक्ष्य हो गया, और कहाँ जा रहे हो तो ये जो लिखा हुआ संवाद है उसमें आप कैसे रावण के लिए कहा गया, राम अगर जोर जोर से बोले तो माना जाएगा कि तो रावण अपनी शालीनता के साथ, और गोविल को देखते थे कितने मतलब, लक्ष्मण थोड़ा उग्र होकर बोलते थे उनके पात्र का, रावण को अगर बिना हंसे कुछ बोले हा 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 मैं लंकेश हूं, अगर नहीं करता है वो तो उसको रावण माना ही नहीं जाएगा, तो रावण है ही नहीं वो। तो ये सारी चीजें जब तक क्लासरूम में
उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक वो कैसे समझेगा। तो विद्यार्थी को समझने के लिए, चाहे वो कुछ कोई विषय पढ़ाया जा रहा हो, उसको जोड़ने के, इसीलिए नाटक जो है एक सामूहिक कला है, टीचिंग भी सामूहिक कला है। अध्यापक केवल बोलता है, लेकिन जुड़े सारे विद्यार्थी अध्यापक से, इसलिए वो अध्यापक और विद्यार्थी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर अध्यापक डिटैच होकर के पढ़ाता है, संलग्न होकर नहीं पढ़ाता है विद्यार्थी को, तब तक वो बात दूर हो जाती है। तो अटैचमेंट जो है, संलग्नता जो है वो जरूरी है, डिटैचमेंट जरूरी नहीं है। विद्यार्थी हमारे दुश्मन नहीं है, हर अध्यापक को ये मान के चलना चाहिए। बहुत से अध्यापक ऐसे होते हैं कि अपना भाव बनाए रहते हैं कि विद्यार्थी उनसे डरते हैं, उनके पास ही नहीं जाते, उनसे कुछ पूछने ही नहीं जाते। ना विकास होगा और ना आपके ज्ञान का विकास होगा। अध्यापक जीवन भर विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए अपने को ज्यादा समृद्ध करता है, ये मान के चलना चाहिए। आज शुरुआत में जो अध्यापक है और जब वो निरंतर पढ़ाता रहता है तो उसके ज्ञान का विकास स्वयं होता है, और वो इस कारण होता है कि विद्यार्थी उससे सवाल पूछते हैं। अगर विद्यार्थी सवाल उससे ना पूछें तो वो जितना जानता है उतना ही जानेगा, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ज्ञान के बारे में इसीलिए कहा गया है, सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जिम खर्चे तिम तिम बढ़े, बिनु खर्चे घट जात। तो जिसका उसका जितना आप व्यय करेंगे उतना ही वो वृद्ध होगा, वो समृद्ध होगा, और अगर नहीं खर्च करते हैं तो वो समाप्त हो जाता है। तो ये जो नाट्य के रूपांतरण की जो सवाल है, वो सवाल यही है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थी, किसी भी विषय को पढ़ाने वाला, आप उसको इस तरीके से पढ़ाइए कि विद्यार्थी की संलग्नता उसके साथ जुड़े, और तब लगेगा, क्योंकि ये सामूहिक कला है, नाटक सामूहिक कला है, उसी तरीके से अध्यापन भी सामूहिक कला है, वो व्यक्ति की कला नहीं है। तो इसको उस तरीके से कर सकते हैं, और अगर उसको बनाया जाए, एक विषय के रूप में लाया जाए तो और अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं मानता हूं कि मेरी बात से प्रश्नकर्ता जो है, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। रंगमंच पर भी सर और एक प्रश्न है, आजकल विद्यार्थियों का साहित्य के प्रति, चाहे नाटक हो या एक मिनट, हाँ, आजकल विद्यार्थियों का साहित्य के प्रति, चाहे नाटक हो या अन्य कोई विधाएं, उनका रुझान कम दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम शिक्षक क्या तरीके अपना सकते हैं? हाँ, देखिए, ये तो ये एक अलग चीज है। वो तो किसी भी बात के लिए, हमने अभी अपने पहले सवाल के जवाब में जो कहा, हाँ, वो यही कहा कि रुचि जागृत करना भी अध्यापक का है। जी जी। तो ये कला तो आपको स्वयं अपने से ढूंढनी होगी। हम क्या करें कि विद्यार्थी हमारे अध्यापन के प्रति या विषय के पढ़ने के प्रति आकृष्ट हो। क्योंकि अगर कोई दो तरीके की चीजें होती हैं, कोई विद्यार्थी या तो कहीं अन्यत्र संलग्न है और वो अपना समय बिताने के लिए उसने एडमिशन ले लिया है, या घर से जबरदस्ती उसको भेज दिया गया है पढ़ने के लिए, इसलिए वो पढ़ रहा है। इसके बावजूद भी अगर अध्यापक के अंदर वो लगाव है अपने विद्यार्थियों के प्रति, तो वो पढ़ना शुरू करेगा। तो इसके कई उदाहरण मेरी पत्नी बताती है। एक किस्सा अभी का है। उनके क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, वो हिंदी नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसका एडमिशन हो गया था, हिंदी ही मिला था उसको। उसको चिढ़ थी तो पीछे बैठती थी, और पीछे बैठती थी तो मोबाइल से कुछ न कुछ करती रहती थी। तो इन्होंने बुलाया
कि क्यों तुम इस तरीके से करते? तो उसने कहा मुझे तो हिंदी पढ़ना नहीं था, मेरा नाम लिख के। तो इन्होंने कहा कि अच्छा तुम ऐसा है कि मत पढ़ो, लेकिन ये मोबाइल भी मत चलाओ, और तुम एक काम करो, तुम आगे बैठा करो। और वो आगे बैठने लगी, और बताया इन्होंने कि उसने सबसे अच्छा किया, अच्छे नंबर पाए और बढ़िया पढ़ाई किया। तो ये कोई कारण नहीं है, कहीं न कहीं से कोई डेविएशन है। उस डेविएशन को पकड़ने का दायित्व भी अध्यापक का ही है। हम ही पकड़ सकते हैं उसको, उसके लिए कोई सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए हम व्यवहार में ही ढूंढ सकते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि वो हमारे निकट आए। ये जो सिद्धांत चला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड एक्सक्लूसिव एजुकेशन, ये जो उसका पार्ट है वो यही है कि अनेक तरीके के विद्यार्थी हमारे सामने हैं, जो उनकी जातीयता अलग है, उनका धर्म अलग है, उनका उनका ब्राटअप अलग है, और हमको उनको सब एक साथ बैठ के पढ़ाना है। तो हम कैसे उनको, और इस तरीके के भी लड़के हैं। आज के समय में एक और बड़ी समस्या है, हर जगह होगी, गोवा में भी होगी। ये जो जनरेशन है, ये न्यूक्लियर फैमिली वाला जनरेशन है, एकल परिवारों वाला। और एकल परिवारों वाला जो जनरेशन है, ये तीसरी पीढ़ी है उसकी, एकल परिवारों की जनरेशन, दूसरी, बल्कि तीसरी नहीं, दूसरी। इस दूसरी पीढ़ी में जो बच्चे आ रहे हैं, जो हमारे बच्चों के बच्चे हैं, वो एकदम अकेले हैं, और एकदम अकेले हैं, और उनके माँ पिता के पास समय नहीं है कि वो समय दे सकें, और वो बहुत से मामलों में बहुत संवेदनशील हैं और डिप्रेशन के शिकार हैं। इसलिए उनको देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कोई इमोशनल प्रोटेक्शन नहीं है। माता पिता के पास समय नहीं है, दादा दादी उनके साथ रहते नहीं है, नाना नानी उनके साथ रहते नहीं है, तो इमोशनली उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? ऐसे विद्यार्थी जरा सा भी डांट दीजिए तो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। हम लोगों के समय में ऐसा नहीं था, हम लोग तो बीचों डंडा मार दिया जाता था, कोई असर नहीं होता था। आज के समय में डांट भी दीजिए तो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ऐसे समय में आपको विद्यार्थियों के स्थिति को पहचानना पड़ेगा। अध्यापक जी। की है वो जाने कि हमको विद्यार्थी को किस तरीके से प्रभावित करना है, तो अध्ययन के प्रति जागरूक। बहुत बहुत अच्छा। छोटी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो आपने संलग्न होने की बात कही ना, वो बड़ी बात है सर। जब तक जैसे हम लोग रंगमंच पर जाने के बाद अभिनेता अपने आप को ना भूले, अगर वो अपने घर के तनाव लेकर आए तो वो किसी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार हम विद्यार्थियों को अगर अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो पहले खुद को भूलना चाहिए कि वो पाठक से और अपने क्लासरूम से अपने आप को और अपने विद्यार्थियों से अपने आप को जोड़ना चाहिए। सर बहुत अच्छी बात हो गई है सर। चर्चा में हम लोग सच में भारतीय रंगमंच की बात करते करते हम शिक्षा शास्त्र की ओर आए, तो अच्छा लगा सर लगातार आपको सुनना। फिर हम आपको सुनना चाहेंगे, और प्रत्यक्ष रूप में भी मुझे लगता है कि हम आपको आमंत्रित करेंगे सर। तो फिर अगली बार हम प्रत्यक्ष गोवा में मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और बिल्कुल अभी एक स्क्रीनशॉट व्यवस्थित ले लो। नहीं, बाकी लोग तो नहीं कर जो कुछ है। हाँ नहीं, जस्ट से यस। अगर कोई कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो हम लेते हैं, नहीं तो सर के साथ हम एक फोटो लेंगे। सर स्क्रीनशॉट लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, एक मिनट में आगे आ जाते हैं। हाँ किरण, यू कैन पुट ऑन। यस यस मरीना। यस चलिए आ जाए, इतने लोग आ जाए अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा लगा सबको। यस सो एक स्क्रीनशॉट ले लो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जुड़े और काफी लंबे समय तक। Wait. Thank you. Yeah. Good. Yes. प्रतिभा।
ओके, Yes. एक Baba स्क्रीनशॉट लो. Yeah. यस, Ready. स्माइल प्लीज. चश्मा निकाल लेता हूँ. चले? यस आ गया. यस, Yes. आ गया सर. आ गया. सर बहुत बहुत आभार पुनः एक बार खंडवा कॉलेज की ओर से, प्राचार्य की ओर से, और जितना सोचा था उससे कई गुना अधिक मिला. तो हम लोग प्रत्यक्ष मिलेंगे तो और अधिक आपसे बातचीत होगी, संवाद होगा सर. और बिल्कुल. यस, मैं कॉलेज आज की संगोष्ठी के लिए सेकेंड डे, जो दूसरा दिन है, उसके लिए प्रोफेसर पूर्णकला सामंत जो हमारे प्राचार्य हैं, उनका हमेशा हमें सहयोग रहता है और प्रोत्साहन भी रहता है. तो उन्हें मैं धन्यवाद देती हूँ और सभी प्रतिभागियों से यह निवेदन करती हूँ कि कल 9 तारीख 8 तारीख को, हाँ, कल माइक्रोबायोलॉजी का सेशन है. तो देशमुख सर आएंगे. तो दिस सेशन विल बी इन इंग्लिश. और देशमुख सर भी काफ़ी वरिष्ठ और प्रबुद्ध हैं अपने क्षेत्र के. तो कल हम उन्हें सुनेंगे. कल हमने संजीव दुबे जी को सुना, आज हमने प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी को सुना, और कल हम ऐसे ही देशमुख सर को सुनेंगे और जीवशास्त्र को, यानी माइक्रोबायोलॉजी को भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे. और आप लोग सभी इसी उत्साह से जुड़ेंगे, इस आशा के साथ और अपेक्षा के साथ मैं सबको धन्यवाद करती हूँ और विदाई लेती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. नमस्कार.